Hey, hello everyone. This is my YouTube channel, and this is mainly focused on studying chemical science and biological science. In this channel, you would see from basic level chemistry to advanced level chemistry, and you would let me know that on which topic you want my videos, mainly chemistry. So I would then plan those next videos according to your comments. So this is our first unit of class 11th, which is some basic concepts of chemistry. So what is chemistry? Chemistry is the science of molecule and their transformation, and it is the science not so much of 100 elements but of the infinite variety of molecules and may be built from them. So केमिस्ट्री एक ऐसी साइंस है जो कि मॉलिक्यूल्स और उनके ट्रांसफॉर्मेशन से डील करती है. एंड साइंस सिर्फ 100 एलिमेंट से डील नहीं करती है. केमिस्ट्री की साइंस ये इन्फिनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और वो कैसे बिल्ट होते हैं उन सबको डील करती है, उन सबको डिस्कस करती है. सो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कुछ इस तरीके से है कि केमिस्ट्री क्या है. केमिस्ट्री इज़ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. सो दैट इज़ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री को हम साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि मैटर के जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ही होते हैं. थ्रू दिस यूनिट वी विल गेट टू नो कि हाउ वी कुड वे एंड perceive these entities, and how we could count the number of atoms and molecules in a given mass of matter, and we could also find out a quantitative relationship between mass and number of these particles. Particles in the sense atoms and molecules. What is the relationship between the mass and atoms and molecules? You know, which could be said as relationship between mass and particles. Quantitative relationship. We will you know, in this chapter, after studying this chapter, you would become capable of answering many questions. The questions I just stated right now, and we would also get to know physical properties of matter and how to describe them quantitatively by using numerical values with suitable units. Now, we would move on to our next topic, which is importance of chemistry. सो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आजकल हम देख रहे हैं जैसे कि केमिस्ट्री का रोल बहुत बड़ा रोल है. इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी एज वेल. I would say a great chemist could make a great economy of a nation. Chemistry's knowledge is used in pharmaceutical industries, cosmetic industries, you know, to make medicines, to make cosmetics, to make fertilizers, to make alkalis, acids, for different purposes. So chemistry is a branch of science that studies the composition of properties and interaction of matter. So this is a very fundamental statement, that chemistry is a branch of science that studies the composition, properties, and interaction of matter. Now, chemists are interested in knowing how chemical transformations occur. Now, chemistry plays a central role in science and is often intertwined with other branches of science like physics, biology, geology, etc. Chemistry also plays an important role in daily life, and chemistry principles are important in diverse areas such as weather patterns, functioning of brain and operation of computers, chemical industries, manufacturing fertilizers, alkalis, acids, salts, dyes, polymers, drugs, soaps, detergents, metals, alloys, and other inorganic and organic chemical, including new material, and contributing it in a big way to the national economy. Chemistry also plays an important role in meeting human needs for food, healthcare products, and other material aimed at improving the quality of life. And this is exemplified by the large scale production of a variety of fertilizers, improved variety of pesticides and insecticides. Similarly, many life saving drugs such as cisplatin and Taxol are effective in cancer therapy and AZT. AZT is
azidothymidine used for helping AIDS victim and have been isolated from plant and animal sources or prepared by synthetic methods. Now, केमिकल प्रिंसिपल्स की अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग है तो हम न्यू मटेरियल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हमें पता है तो स्पेसिफिकली हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। इससे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं सुपर कंडक्टिंग सेरेमिक्स का, कंडक्टिंग पॉलीमर्स का। बाय द नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं सुपर कंडक्टिंग सेरेमिक्स को, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, है ना, ऑप्टिकल फाइबर्स को, लार्ज स्केल मिनिएचराइजेशन ऑफ सॉलिड स्टेट डिवाइसेस को। रिसेंट ईयर्स में केमिस्ट्री ने टैकल किया है विद अ फेयर डिग्री ऑफ सक्सेस सम ऑफ द प्रेजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जैसे कि बहुत सारे केमिकल्स हैं जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो केमिस्ट्री इज़ द वन विच इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन टू दैट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन by providing safer alternatives to environmental hazards like refrigerants like CFCs, chlorofluorocarbon, which are responsible for ozone depletion in the stratosphere, have been successfully synthesized. However, many big environmental problems continue to be matter of grave concern to the chemist. Now, one such problem is the management of greenhouse gases like methane, carbon dioxide, etc. Now, chemistry also helps in understanding biochemical processes. By understanding biochemical processes, we can use enzyme for large scale production of chemical and synthesis of new exotic material, and are some of intellectual changes for the future generation of chemists. A developing country like India needs talented and creative chemists for accepting such challenges. So, a great knowledge of chemistry could provide you a solution of environmental pollution or environmental degradation by providing you a safer alternative to that. And many chemical industries also rely on the knowledge of not only chemical industries but other industries also rely on the knowledge of chemistry, which would lead to a greater impact on the economy of a nation. So a great chemist could build a great industries, and so great industries would contribute to the great economy. So we could say that great chemist could make a great economy. Now we would move to our next topic, which is nature of matter. So nature of matter, what is matter? Matter is just anything has mass and occupies space is called matter. मैटर क्या है? मैटर वो चीज़ है जिसमें कि अगर थोड़ा कोई मास है और अगर वो कुछ जगह लेता है, कुछ जगह घेरता है, तो उसको हम बोलते हैं मैटर. एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. अब हमारे आसपास जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जैसे कि बुक है, पेन है, पेंसिल है, वाटर है, एयर, ऑल लिविंग बींग्स, ये सब कुछ मैटर से ही बना हुआ है. एंड मैटर से बना हुआ है, एंड ये मैटर है, इसको हम कैसे जानेंगे कि मैटर की दो प्रॉपर्टीज़ हैं कि उसका मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है. सो एवरी ऑब्जेक्ट विच इज़ लाइंग ऑन आवर सराउंडिंग हैज़ सम मास and also occupying space. So it is composed of matter, or it is a matter. It is a matter. And हमें पता है कि मैटर को हम 3 फिजिकल स्टेट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. वैसे तो हायर लेवल में और भी क्लासिफिकेशंस होते हैं मैटर के, बट इन द बेसिक लेवल वी वुड क्लासीफाई देम इन ओनली 3 स्टेट्स, विच इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं, उनका अरेंजमेंट डिसाइड करता है कि ये सॉलिड होगा. सॉलिड का अरेंजमेंट अलग होता है, लिक्विड का अलग होता है, गैस का अलग होता है. सो सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो, दीज पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन एन ऑर्डरली फैशन एंड देयर इज़ नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं एंड एक ऑर्डरली फैशन में अरेंज होते हैं. उनमें कोई भी वैकेंट स्पेस नहीं होता है, बिल्कुल फिल्ड अप होते हैं. एंड वो अरेंजमेंट फॉर्म्स सॉलिड.
In liquid, the particles are close to each other but they can move around. लिक्विड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स क्लोजली प्रेजेंट होते हैं लेकिन इतने भी क्लोज प्रेजेंट नहीं होते हैं कि सॉलिड की तरह एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज हो, बट हाँ थोड़ा थोड़ा दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े दूर होते हैं, लेकिन गैस के कंपैरिजन में वो लिक्विड फिर भी डेंस होता है ना। तो वो कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स जो है अरेंज्ड होते हैं, एक दूसरे से क्लोज होते हैं लिक्विड में, लेकिन फिर भी उनके पास थोड़ा स्पेस होता है कि वो मूव कर सकें। सॉलिड में वो स्पेस भी नहीं होता, वो बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है विच इज़ वेरी मच डेंस स्ट्रक्चर। नहीं, सो दैट इज़ वाई सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड की, एंड देन गैस की। सो एंड गैसेस में पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत फार अपार्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट, एंड उसका मूवमेंट भी बहुत ईजी होता है एंड फास्ट होता है। बिकॉज ऑफ सच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिबिट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। इस टाइप के अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के कारण सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज़ भी वो डिफरेंट डिफरेंट शो करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, जैसे कि सॉलिड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड्स में डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, डेफिनाइट शेप होता है, लेकिन लिक्विड्स में डेफिनाइट वॉल्यूम तो होता है बट उनका डेफिनाइट शेप नहीं होता है। आपने देखा होगा, आप लिक्विड को किसी भी कंटेनर में जब ट्रांसफ़र करते हो तो वो उसका वैसा शेप ले लेता है। तो वो जब वैसा शेप ले लेता है तो उसका मतलब ये है कि उसके पास कोई अपनी डेफिनाइट शेप नहीं है। इट इज़ टेकिंग द शेप ऑफ दैट कंटेनर, it doesn't have shape. Liquid itself don't have any shape, but it is taking the shape of container. So gases have neither definite volume and nor definite shape. Gases में ना तो definite volume होता है ना definite shape होता है, and they completely occupy the container in which they are placed. वो पूरी तरीके से कंटेनर, कोई जैसा कंटेनर होगा वो उसमें उसके हिसाब से ही रहते हैं। अगर कोई छोटा कंटेनर है उतनी ही गैस है, सो दे वुड ऑक्यूपाइड लाइक दैट। और कोई बड़ा कंटेनर है तो वो थोड़ा और ज़्यादा छोटे कंटेनर में कंप्रेस्ड फॉर्म में रह जाएंगे, और जब वो बड़े कंटेनर में होंगे तो वो एक्सपांडेड फॉर्म में होंगे, बट वो ऑक्यूपाई करेंगे पूरे कंटेनर को। सो उनका कोई डेफिनाइट वॉल्यूम या डेफिनाइट शेप, गैसेस में कोई डेफिनाइट वॉल्यूम या डेफिनाइट शेप नहीं होता। अब ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये इंटर कन्वर्टेबल हैं बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम इनका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करें तो ये इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं एक दूसरे में। जैसे कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है। एंड ये हम लोअर स्टैंडर्ड्स में भी हमने पढ़ा है कि सॉलिड कैसे लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड कैसे गैस में चेंज होता है, और गैस कैसे दोबारा लिक्विड में, लिक्विड दोबारा कैसे सॉलिड में चेंज होता है। सो सॉलिड को अगर हम हीट करें तो इट वुड बिकम लिक्विड, एंड लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो गैस बन जाता है, और गैस को जब हम कूल करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड को जब हम कूल करते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है। जैसे हमने सॉलिड को हीट किया तो इट वुड फॉर्म लिक्विड। अगर हम सॉलिड को हीट करें तो इट वुड फॉर्म लिक्विड, एंड लिक्विड को अगर हम कूल डाउन करें तो इट वुड फॉर्म सॉलिड। और जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो बनता है गैस, और गैस को जब हम कूल करते हैं तो वो बनता है लिक्विड। So this is the relation which is given in NCERT as well.
So here metals are also further classified into various groups.